A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th business studies. So from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is financial management, and this is your part B of the business studies. So chapter 9, financial management. So in this chapter we have discussed about the what is the meaning of the financial management, some common definition of the financial management, role of the financial management. So we discussed the role of financial management, uh, that is size and composition of the fixed assets, amount and composition of the current assets, the amount of long term and short term funds, breakup of long term financing into debt, equity, etc., all items in profit and loss account. So these all are the role of the financial management. Next we have started that is objective of the financial management. Okay, so what are the different objectives that we have discussed? That is profit maximization, maintenance of the liquidity, proper utilization of funds, meeting of the financial commitment with creditors. Okay, next topic that we have started, that is financial decision. So in the financial decision, three major decision has to be taken by the finance manager, that is investment decision, financing decision, or dividend decision. So in the last class we have already discussed about the investment decision, that is where to invest fixed capital. Okay, and what are the importance and the scope of the capital budgeting decision, factors affecting investment capital budgeting decision. Next we have started the financing decision. So financing decision is related to the from where the sources of the business finance sources of the finance can be raised. So it is the that is owners fund and the borrowed fund, we have already discussed. Next we have started the factors affecting the financing decision, that is cost, risk, cash flow position, control consideration, flotation cost, fixed operating cost, state of capital market. Next, so till here we have discussed, and in the next class we have started with the dividend decision. Okay, so first of all we will recapitulate dividend decision, only dividend decision, and after that we will start the further topic that we have to study in today's class. Decision. So appropriate distribution of profit. So this decision is कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस फंड्स. ये जो डिसीजन है वो किससे रिलेटेड है कि जो भी सरप्लस फंड है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, प्रॉफिट को मेक करता है, फिर उसके बाद जो भी सरप्लस फंड्स हैं उनको कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा. सो डिविडेंड डिसीजन इज बेस्ड ऑन दैट ओनली. सो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस पार्टीज सच एज क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, डिबेंचर होल्डर, शेयर्स होल्डर एक्सेट्रा. अब जो भी प्रॉफिट है फर्म का वो क्या होता है, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं और जो भी पार्टीज़ है, जो भी प्रॉफिट है फर्म का वो क्या होता है कि डिफरेंट पार्टीज़ जो है उनके बीच में फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट होता है. सच एज जो भी हो गया, क्रेडिटर्स है उनको पे करना होता है, एम्प्लॉयज़ है उनको इन द फॉर्म ऑफ सैलरी दिया जाता है, डिबेंचर्स होल्डर्स पे इंटरेस्ट पे किया जाता है और शेयर्स होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है. ठीक है, सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एक्सेट्रा इज फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. ठीक है, इंटरेस्ट को पे करना और डिबेंचर होल्डर को पे करना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और फर्म का क्या है, ये फिक्स्ड लायबिलिटी. ऐसा नहीं कि इसमें कुछ फ्लक्चुएशन होता है. सो व्हाट कंपनी और फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू डिसाइड इज़ व्हाट टू डू विद द रेसिड्यूअल और लेफ्ट ओवर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. फिर उसके बाद जो भी
फाइनेंस मैनेजर है उसको ये डिसाइड करना होता है कि बाकी जो मनी इनकम बची इन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, मतलब क्रेडिटर्स को देने के बाद, डिबेंचर्स होल्डर्स को देने के बाद, उस जो रेसिडुअल मतलब जो लेफ्ट आउट इनकम है उसका क्या करना है, हमें क्या उसके साथ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या हमें उसको एक्यूमुलेटेड फॉर्म में रखना है. सो द सरप्लस प्रॉफिट इज़ इधर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी शेयर्स होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कीप असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. अब जो सरप्लस प्रॉफिट है वो क्या होगा, उसका दो ऑप्शन है, या तो इक्विटी शेयर्स होल्डर को उनके डिविडेंड के फॉर्म में पे कर दिया जाए या उस मनी को इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रख ले. सो अंडर डिविडेंड डिसीजन द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच टू कीप असाइड एज रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है, अब ये जो डिविडेंड डिसीजन है इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करता है कितना मनी उसको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड रखना है और कितना मनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और कितना एज अ रिटेन्ड अर्निंग उसको अपने पास रखना है. सो इन डिविडेंड डिसीजन इसमें ही फाइनेंस मैनेजर यही डिसाइड करता है कि डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को कितना देना है और कितना एज अ रिटेन्ड अर्निंग कीप असाइड अपने पास उसको रखना है. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन. ओके, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं. सो फाइनेंस मैनेजर एनालाइजेज द फॉलोइंग फैक्टर्स बिफोर डिवाइडिंग द नेट अर्निंग बिटवीन द डिविडेंड एंड द रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है, जो भी फाइनेंस मैनेजर है वो क्या करता है, एनालाइज करता है जो भी फैक्टर्स हैं उनको डिवाइड करने से पहले, दैट इज़ नेट अर्निंग बिटवीन द डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग के उसमें नेट अर्निंग को देखता है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज दैट इज अर्निंग. डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ द करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग. जो भी डिविडेंड है वो कहाँ से पे किया जाता है, जो भी करंट ईयर की अर्निंग है, जो भी प्रीवियस ईयर की अर्निंग है. सो इफ़ देयर आर मोर अर्निंग देन द कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड. ठीक है, अब अगर क्या है, मोर अर्निंग हो गई है कंपनी की, देन कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड. कंपनी क्या है, डिक्लेयर करती हाई रेट ऑफ डिविडेंड, वेयर एज ड्यूरिंग लो अर्निंग पीरियड द रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो लो. अब जब जिस ईयर में अर्निंग लो हुई है तो डिविडेंड का भी रेट क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा. जब ज़्यादा अर्निंग हुई होगी तो रेट ऑफ डिविडेंड भी ज़्यादा होगा. नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग्स. So company having stable or smooth earning prefer to give high rate of dividend, whereas companies with unstable earning prefer to give low rate of earning. ठीक है, जो कंपनी में क्या है वो स्टेबल है, स्मूथ अर्निंग है, वो क्या प्रेफर करती है, हाई रेट ऑफ डिविडेंड. वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करती है. और जो कंपनी की अर्निंग अनस्टेबल है वो क्या है, लो रेट ऑफ अर्निंग देती है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज कैश फ्लो पोजीशन. सो पेइंग डिविडेंड मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश. डिविडेंड को पे करना मतलब कैश का आउटफ्लो हो रहा है. कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड. कंपनी क्या है, हाई रेट डिक्लेयर क्या करती, हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे सरप्लस कैश, जब उनके पास सरप्लस कैश होता है. सो इन सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश कंपनी डिक्लेयर नो और वेरी लो डिविडेंड. ठीक है, पेइंग डिविडेंड, अगर डिविडेंड पे करे तो उसका मतलब क्या है कि कैश आउटफ्लो हो रहा है ना, हम कुछ दे रहे हैं किसी को. सो कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश. कोई भी कंपनी तभी हाई रेट ऑफ डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी जब उसके पास लार्ज अमाउंट में सरप्लस कैश होगा. और अगर उसके पास शॉर्टेज ऑफ कैश होगा तो कंपनी डिक्लेयर ये कर देगी कि उसके पास कोई कैश नहीं है और बहुत स्मॉल अमाउंट में वो डिविडेंड को देगी. नेक्स्ट वन इज दैट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. सो इफ अ कंपनी
if a company has a number of investment plan, then it should reinvest the earning of the कंपनी, ठीक है। अगर कंपनी के पास क्या नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान है कि वो ये डिसाइड कर चुकी है कि इसको किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, देन इट शुड री इन्वेस्ट द अर्निंग ऑफ द कंपनी। तब वो कंपनी क्या है, वो अर्निंग जो हुई है उसको री इन्वेस्ट करेगी। सो एज टू इन्वेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, कंपनी हैज़ टू ऑप्शन। अगर कंपनी क्या है कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट में, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, टू रेज एडिशनल कैपिटल और इन्वेस्ट इन द रिटेन्ड अर्निंग, या तो वो एक एडिशनल कैपिटल को रेज करे और रिटेन्ड अर्निंग में इन्वेस्ट करे। द रिटेन्ड अर्निंग आर चीपर सोर्स, जो रिटेन्ड अर्निंग होता है वो चीपर सोर्स होता है, डू नॉट इन्वॉल्व द फ्लोटेशन कॉस्ट एंड एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगता है और कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती है। सो इफ़ कंपनीज हैव नो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ प्लान, अगर कंपनी का कोई भी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ प्लान नहीं है, देन इट वुड बी बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट मोर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी का कोई भी इन्वेस्टमेंट का या ग्रोथ अदर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा है कि वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे। सो जनरली मैच्योर कंपनी डिक्लेयर मोर डिविडेंड, ठीक है। जनरली क्या होता है कि मैच्योर कंपनी क्या करती है, वो मोर डिविडेंड प्रोवाइड करती है, और जो ग्रोइंग कंपनी है वो क्या करती है, कीप असाइड मोर रिटेन्ड अर्निंग, वो रिटेन्ड अर्निंग को एक जगह रख लेती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड। Some company follow a stable dividend policy as it has better impact on the shareholder and improve the reputation of the company in the share market, ठीक है। तो जो some company है वो क्या करती है, फॉलो करती है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को, मतलब स्टेबल डिविडेंड, ना डिविडेंड ज़्यादा दो ना डिविडेंड कम दो, एज इट बेटर इम्पैक्ट ऑन द शेयर होल्डर। अब ये क्या होता है, ये एक बेटर इम्पैक्ट किसी भी शेयर होल्डर को देता है, एंड इम्प्रूव द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी को एक प्रॉपर रेपुटेशन भी देता है। सो द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाई द इन्वेस्टर। अगर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है, मतलब स्टेबल डिविडेंड दिया जा रहा है, तो वो क्या करता है, इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करता है। इवन बिग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रेफर टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी विद अ रेगुलर एंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। इवन जो बिग कंपनीज़ हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी प्रेफर किस में करते हैं, इन्वेस्ट उसी कंपनी में करेंगे जहाँ पे स्टेबल डिविडेंड है। ये नहीं कि वहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशन हो, किसी बार में बहुत ज़्यादा डिविडेंड के फॉर्म में मिल गया और किसी बार में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो एक स्टेबल बना है कि अगर वो 100 का शेयर ले रहा है तो अराउंड 110, 120 इतने का अराउंड मिलता ही रहे, ठीक है, स्टेबल रहे। ये नहीं कि एक बार में 120 मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर वो 50 का हो जा रहा है, उसके बाद वो 150 का हो जा रहा है, नहीं, वो स्टेबिलिटी बनी रहे कि 120 का ही हर बार उसको डिविडेंड मिल रहा है। सो द इंक्रीज इन डिविडेंड, हाँ, the increase in dividend is made only when there is confidence to company that their earning potential has gone up. अब जब डिविडेंड कोई भी कंपनी इंक्रीज़ कर रही है, उनके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है दैट देयर अर्निंग पोटेंशियल, कि जो उनकी अर्निंग की पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ेगी, एंड नॉट जस्ट अर्निंग ऑफ द करंट ईयर आर इंक्रीज, और बस करंट ईयर की ही अर्निंग नहीं इंक्रीज़ होगी, आगे भी फ्यूचर भी वो अर्निंग इंक्रीज़ होगी। सो इन अदर वर्ड्स, dividend per share is not altered if changes earning is small, ठीक है। अब क्या है, डिविडेंड पर शेयर, हर एक शेयर पे डिविडेंड जो मिल रहा है इज़ नॉट ऑल्टर्ड, वो उस टाइम नहीं होगा तब इन द फॉर्म ऑफ हम उसको व्यू नहीं कर सकते हैं, या वो कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा इफ़ चेंजेस अर्निंग इज स्मॉल, जब उसकी जो चेंज है वो अर्निंग में जो चेंज हो रहा है वो स्मॉल है, और सीम टू बी टेम्प्रोरी इन नेचर, और वो नेचर में टेम्प्रोरी दिख रहा है, कि मतलब ये नहीं कि परमानेंट ही वो ग्रोथ होती रहेगी, जो भी आपका पर शेयर पे जो भी डिविडेंड मिलेगा वो हमेशा ही ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं। उस केस में
ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बट जहाँ पे स्टेबिलिटी होगी वो वाली चीज़ों को कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ज़्यादा प्रेफर करेगी, जहाँ पे डिविडेंड क्या हो, स्टेबल हो। नेक्स्ट क्या है, दैट इज प्रेफरेंस ऑफ द शेयर्स होल्डर। सो इफ अ कंपनी having a large number of retired and middle class shareholder, then it will declare more dividend and keep aside less in the form of retained earning. Whereas if the company is having large number of young and wealthy shareholder, then it will prefer to keep aside more in the form of retained earning and declare low rate of dividend. That means कि अगर कंपनी क्या है, कंपनी के पास लार्ज नंबर में ऐसे शेयर्स होल्डर हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, मिडिल क्लास के हैं, ठीक है, उस केस में कंपनी क्या करती है, मोर डिविडेंड प्रोवाइड करती है और लेस अमाउंट में वो रिटेन्ड अर्निंग रखती है, ठीक है। बट अगर किसी केस में किसी कंपनी के लार्ज नंबर में यंग, मतलब जो यंग और वेल्दी शेयर्स होल्डर्स हैं, उनका क्या करती है, उन केस में वो क्या करती है कि लेस अमाउंट में डिविडेंड देती है और लार्ज अमाउंट में वो रिटेन्ड अर्निंग को अपने पास रखती है और ये डिक्लेयर कर देती है कि लो रेट डिविडेंड। क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट देयर गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस, कि जो भी रिटायर्ड और मिडिल क्लास के शेयर्स होल्डर है, बिकॉज ऐसे क्या होंगे कि ज़्यादा जो शेयर्स होल्डर है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। वो वेल्दी तो ठीक है, वो तो अपना इन्वेस्ट करेंगे, जो मिडिल क्लास के शेयर होल्डर है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे और उनको ज़्यादा लगेगा कि हमें मनी को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट वन इज दैट इज टैक्सेशन पॉलिसी। सो द रेट ऑफ डिविडेंड the rate of dividend is also depend upon the taxation policy of the government, कि जो रेट है डिविडेंड का कितना होगा ये किस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, मतलब गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है। सो अंडर प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम डिविडेंड इनकम इज़ टैक्स फ्री इनकम फॉर द शेयर्स होल्डर, कि अभी जो टैक्सेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्या है, डिविडेंड की जो इनकम है, डिविडेंड पे जो इनकम मिल रही है वो टैक्स फ्री है, उस पर टैक्स नहीं पे करना है फॉर द शेयर्स होल्डर, वेयर हैज़ कंपनी हैज़ टू पे टैक्स ऑन द डिविडेंड गिवन टू शेयर्स होल्डर। और वहीं पे कंपनी हैज़ टू पे, कंपनी को क्या है, डिविडेंड पे टैक्स पे करना है जो शेयर्स होल्डर को दिया जाएगा। सो इफ़ द टैक्स रेट इज़ हायर, जब टैक्स रेट ज़्यादा होगा तो कंपनी प्रेफर करेगी पे लेस। अगर उसको ज़्यादा टैक्स को पे करना पड़ जाएगा तो वो लेस अमाउंट में डिविडेंड को पे करेगी। अगर टैक्स क्या है, कम है, तो कंपनी हैज़ टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड, फिर डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स पॉलिसी भी ऐसी ही होती है। नेक्स्ट वन इज दैट इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। सो इफ कैपिटल मार्केट कैन ईजिली बी accessed or the approach and there is enough demand for securities of the company, then company can give more dividend and raise capital by approaching capital market. But it is difficult for the company to approach and access capital market, then companies declare low rate of dividend and use reserves or retained earning for the reinvestment, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर if the capital market can be easily accessed, ठीक है, कैपिटल मार्केट वहीं जहाँ पे शेयर्स और ये सब सिक्योरिटी के साथ मैनिपुलेशन होता है, परचेज एंड सेल और अप्रोच, एंड देयर इज़ इनफ डिमांड फॉर सिक्योरिटीज़, और वहाँ पे डिमांड क्या है, बहुत है, मतलब इनफ अमाउंट में है, देन कंपनी कैन गिव मोर डिविडेंड। उस केस में कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड ज़्यादा देगी एंड रेज कैपिटल बाय अप्रोचिंग कैपिटल मार्केट, और कैपिटल को रेस करेगी कैसे, कैपिटल मार्केट में पहुंच के। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द कंपनी, ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कंपनी के टू अप्रोच एंड एक्सेस कैपिटल मार्केट को एक्सेस करना जब कंपनी डिक्लेयर लो रेट ऑफ डिविडेंड। जब हाई रेट ऑफ डिविडेंड देगी तो कैपिटल मार्केट तक पहुंच के उसको प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि ज़्यादा पीपल क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे। बट जहाँ पे डिविडेंड क्या है, लो रेट ऑफ डिविडेंड है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड यूज़ रिजर्व फॉर दी रिटेन्ड अर्निंग फॉर दी री इन्वेस्टमेंट, और उस केस में वो अपने जो भी रिटेन्ड अर्निंग मनी है उसको वो
री इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेगा, यूज़ करेगा। दैट इज लीगल रिस्ट्रिक्शंस। सो कंपनीज एक्ट हैज़ given Companies Act has given certain provision regarding the payment of dividend. Apart from the Companies Act, there are certain internal provision for the company, that is whether the company has enough flow of cash to pay dividend. So the payment of dividend should not affect the liquidity of the company. जो भी कंपनीज एक्ट है वो ये बताया है, प्रोविज़न दिया है रिगार्डिंग द पेमेंट के डिविडेंड के पेमेंट के लिए। सो अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज एक्ट के अपार्ट की बात करते हैं, देयर आर सर्टेन इंटरनल प्रोविज़न ऑफ द कंपनी। तो उसके अलावा हर एक कंपनी का एक अपना इंटरनल डिसीजन भी होता है फॉर प्रोवाइडिंग द डिविडेंड, दैट इज़ वेदर द कंपनी हैज़ इनफ फ्लो ऑफ कैश टू पे डिविडेंड, कि क्या कंपनी के पास इनफ मनी है, इनफ कैश, कंपनी के पास इतना कैश है कि वो डिविडेंड पे कर सके। सो द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। तो जो भी पेमेंट होगा वो डिविडेंड, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड का पेमेंट करें, शुड नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। वो कंपनी की लिक्विडिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कंपनी के पास इतना एक लिक्विड फॉर्म में कैश होना चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। सो व्हेन कंपनी टेक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, देन फाइनेंसियर मे पुट सम रिस्ट्रिक्शन और कॉन्स्टेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, जब कंपनी क्या करती है, एक लॉन्ग टर्म लोन लेती है, तो जो भी फाइनेंसियर हैं वो क्या करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन और कॉन्स्टेंट प्रोवाइड करते हैं, देते हैं ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जब डिविडेंड का पेमेंट होता है। एंड कंपनी हैव टू बी अबाइड बाई दीज कॉन्स्टेंट। और कंपनी क्या है, सारी कंपनी क्या होती है, अबाइडेड होती हैं, ठीक है, कि उनको ये कॉन्स्टेंट और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने, इसीलिए इसमें कह रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। So the declaration of the dividend has impact on the stock market, as increase in dividend is taken as a good news in the stock market and price of the security rise। ठीक है, जो डिक्लेरेशन है डिविडेंड का हैज़, वो किस पे है, वो स्टॉक मार्केट पे बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट देता है। एज इंक्रीज इन डिविडेंड इज़ टेकन एज गुड न्यूज़, कि अगर किसी भी कंपनी का डिविडेंड इंक्रीज़ करा है तो वो गुड न्यूज़ है स्टॉक मार्केट में। एंड प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी राइज, जो भी प्राइस सिक्योरिटी की राइज कर रही है। सो वेयर एज अ डिक्रीज इन द डिविडेंड में हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस इन द स्टॉक मार्केट। बट अगर डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, तो इससे क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर रहा है, अगर वो शेयर्स को परचेज़ कर रहा है, तो अगर उसका क्या बोलते हैं कि डिविडेंड ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा पीपल को अट्रैक्ट करेगा। बट अगर उसका डिविडेंड भी बहुत लेस अमाउंट में मिलेगा तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा किसी भी शेयर्स होल्डर्स को। So the possible impact of dividend policy in the equity share price also affect the dividend decision। ठीक है, वो डिविडेंड डिसीजन को भी इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट इज देखिए इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, फाइनेंशियल डिसीजन में दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग जिसके वो बोलते हैं, और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट पढ़ा फाइनेंसिंग डिसीजन, कि वो कौन सा सोर्स होगा जहाँ से फंड और कैपिटल रेज होंगे। डिविडेंड डिसीजन मतलब कि जो भी प्रॉफिट है उसका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल डिसीजन ख़त्म हुआ ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, financial planning means
in advance how much to spend on what to spend according to the funds at your disposal. फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिंपल करना, दैट हाउ मच टू स्पेंड, कि कितना स्पेंड करना है, एंड व्हाट टू स्पेंड, और क्या स्पेंड करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है, अकॉर्डिंग टू दी फंड एट योर डिस्पोजल. जितना आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके कंपनी में फ़ंड है, आपको कितना डिस्पोज करना है उस फंड को. सो इन दी वर्ड्स ऑफ दी ज़ेरस्टेनबर्ग, financial planning includes determination of the amount of finance needed by an enterprise to carry out its operation smoothly. मतलब जो भी फाइनेंस है, उसका अमाउंट है, उसको डिटरमाइन करना, उसका डिटर्मिनेशन करना, जो भी कोई भी इंटरप्राइजेस को जितने भी फंड की नीडेड है. क्यों? क्योंकि फॉर कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली, कि उसके कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म के जो भी एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली चलती रहे, उसके लिए फ़ंड को क्या करना, फाइनेंस को क्या करना, डिटरमाइन करना. सो दिस इज़ योर फाइनेंशियल प्लानिंग. सो डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द फंड, दैट इज़ द पैटर्न ऑफ सिक्योरिटीज़ टू बी इशूड, कि किस टाइप के, ये डिटरमाइन करना कि सोर्सेज ऑफ फंड्स भी क्या होंगे. ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम यही डिसाइड करेंगे ना कि फंड्स के सोर्सेज क्या होंगे और किस टाइप के जो सिक्योरिटीज़ होंगी वो इशू होंगी. ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है कि हम लोग बोरोड फंड के थ्रू करेंगे या ओनर्स फंड में करेंगे. अब ओनर्स फंड में भी किसके थ्रू इशू करेंगे और बोरोड फंड के थ्रू भी किसकी थ्रू हम लोग फंड को लेंगे, तो ये भी डिटरमाइन करना. सो थर्ड वन इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ द suitable policies for proper utilization and administration of the fund. ओके, तो कोई जो पॉलिसीज़ हैं कंपनी, फर्म की, उनको भी डिटरमाइन करना. क्यों करेंगे? फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, कि जो भी फंड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और फर्म का, वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, या उसका प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन हो या नहीं रहा है, तो उसके लिए फ़ंड का डिटर्मिनेशन करना. अब इसमें देखो, कह रहा है कि द फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड. सो जो फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है वो क्या हो, बिगिन किसके साथ स्टार्ट करेगी? विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि टोटल कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है. सो फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर डू द सेल्स फॉरकास्ट. अब इस केस में जो फाइनेंस मैनेजर है वो क्या करेगा? सेल का फॉरकास्ट करेगा. मतलब फॉरकास्टिंग होती है कि उसको एक अजम्पशन करना कि कितना सेल हमारा होगा, पहले से ही उसको अज्यूम करना, अजम्पशन करना कि इतना सेल्स होगा. And if the future prospects appear too bright and expect increase in sale, then firm need to increase its production capacity. ठीक है, अगर ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है, कि फ्यूचर दिख रहा है, ब्राइट है, हाँ, मतलब कि सेल्स क्या है, वो इन सेल्स में इंक्रीज़ होगा, एंड एक्सपेक्ट इंक्रीज इन सेल्स का क्या है, एक्सपेक्टेड है कि वो इंक्रीज़ होगा ही होगा, तो उस केस में क्या है, देन फर्म नीड्स टू इंक्रीज़ इन दी प्रोडक्शन कैपेसिटी. अब फर्म क्या करेगी, अपना जो भी उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको वो इंक्रीज़ कर देगी. ठीक है, विच मीन्स मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स. अब इसका मतलब क्या हो गया कि लॉन्ग टर्म फंड्स की क्या है, नीड भी अब ज़्यादा होगी. सो हायर लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड इंक्रीज इन सेल विल रिक्वायर हायर फिक्स्ड एज वेल एज वर्किंग कैपिटल. ठीक है, अगर हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा तो, एंड अगर सेल भी इंक्रीज़ होगा, सो ये क्या रिक्वायर करेगा, विल रिक्वायर हायर फिक्स्ड एज वेल एज वर्किंग कैपिटल. उस केस में क्या है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा. क्यों? क्योंकि उस केस में जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है कि उसका मतलब सेल इंक्रीज़ हो रहा है, कोई भी
जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में जब फाइनेंस से रिलेटेड होती है प्लानिंग, जब फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, तब डिसाइड मतलब एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में कितना एक्सपेंस हो सकता है। तो उसके लिए फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, एक फॉरकास्ट करता है कि कितना सेल हो जाएगा। अगर उसको दिखता है और फ्यूचर में होता है कि हाँ फ्यूचर मतलब इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा है, मार्केट में इसकी बहुत डिमांड होगी, उस केस में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है एज वेल एज है, कंपनी को अपने सेल्स को इंक्रीज़ करना पड़ता है। सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उसे क्या चाहिए, उसे मेन चाहिए कि कैपिटल हो। तो उस जगह पे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की जो डिमांड होती है वो बहुत बढ़ जाती है।